everyone. So I welcome you all to this masterclass of aldehydes and ketones. We are today going to discuss the preparation. आज हम सिर्फ और सिर्फ preparation की बात करेंगे इस masterclass में of aldehydes and ketones. Right? So let's just start with it. Right. So the first preparation for aldehydes and ketones is from alcohol. Using alcohols, अगर हम preparation करें, so the first reaction is oxidation of alcohol. Now, पहली चीज अच्छा, before going into this preparation, let's just first know कि what is exactly is aldehyde. So carbonyl compounds में अगर हमारे पास एक साइड पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक साइड पे कोई भी अल्काइल चेन प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स वो है हमारा एक aldehyde, right? And if on the both ends of the carbonyl carbon हमारे पास alkyl chain है, it can be same, it can be different, but it cannot be hydrogen, right? So it has to be some carbon chain, alkyl chain होनी चाहिए carbonyl carbon के दोनों ends पे, ठीक है? So that is an example of that is ketone. So simple general aldehyde is RCHO and general ketone is RCO R dash, when R can be equal to R dash and R cannot be equal to R dash. See, that's totally fine, right? So अब हमारे पास है the first preparation from alcohol. So अब alcohols हमें पता है कि alcohols are ROH, right? तो ROH में it depends कि कौन सा हमारा carbon है. If the carbon to which OH is attached is further attached to just one carbon, इसका मतलब वो एक primary alcohol है. If the OH attached carbon is further attached to two other carbons, so that is a case of secondary alcohol. And if we have the OH attached carbon which is connected to further 3 carbon atoms, that is a 3-degree alcohol, right? तो अब oxidation करना है हमें alcohols का. तो alcohol की oxidation के लिए we need a hydrogen on the carbon which is attached to OH group, ठीक है? इसीलिए primary और secondary alcohols को हम oxidize कर सकते हैं, but tertiary alcohols को हम oxidize नहीं कर सकते. उसका एक simple सा मैं आपको दिखा देती हूँ. Because of lack of hydrogen, देखो ऐसा होगा. If I say it is a primary alcohol, right? It is further connected to just one carbon. अब मैंने कहा कि अगर मैंने उसके further दो कोई भी alkyl chain लगा दी and अब इस पे एक OH है और एक H है, so this is 1 degree, this is 2 degree. I'm sure ये सबको पता ही है, but just अब if the carbon is further attached to 3 carbons, right? तो इसका मतलब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, राइट? तो ऑक्सीडेशन हम अगर हमें करना है अल्कोहल का, तो हमें एक CH बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा. तो बिकॉज third 3-degree alcohol has no hydrogen, तो इसलिए 3-degree alcohols cannot be oxidized. Now the question is कि primary alcohol और secondary alcohol से हम कैसे aldehydes ketone बनाएंगे? So for primary alcohol, right, whenever you oxidize primary alcohol with, now the important thing here is, the important reagent here is pyridinium chlorochromate, PCC. We know oxidizing agents कौन से होते हैं. अगर हम strong oxidizing agents की बात करें तो they are KMNO4 and K2Cr2O7. So if you react a primary alcohol with KMNO4 or K2Cr2O7, then the reaction goes till carboxylic acid, right? They convert them into carboxylic acid, but we want it to stop at aldehyde. तो अगर हमें aldehyde पे reaction stop करनी है, हमें उसका further oxidation नहीं करना, so you have to use pyridinium chlorochromate, which is a mild oxidizing agent which is specifically used for oxidation of primary alcohol into aldehydes. Aldehydes से further वो oxidation नहीं show करता है, right? In case of secondary alcohol में अगर आप same reagent use कर सकते हो PCC, or we can use Jones reagent, or even we can use K2Cr2O7 और KMNO4, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, राइट, उसको आप अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी रिएक्ट कराओगे तब भी द एंड प्रोडक्ट हैज टू बी कीटोन. सो द क्रक्स हियर इज कि प्राइमरी अल्कोहल को अगर आपने pyridinium chlorochromate के साथ रिएक्ट करा in the presence of a CH2Cl2 solvent, then we'll get aldehyde. So this is the reaction, and if you oxidize any 2-degree alcohol, any secondary alcohol with any oxidizing agent, then the product is ketone only, क्योंकि वही उसका end product है. There is no difference. So 2-degree alcohol will oxidize to give ketone. Now reagent can be any, it can most frequently it is used Jones reagent, and Jones reagent is
H2CrO4 या फिर CrO3 in the presence of water also, right? कुछ भी लिखता है. Now, यही मैंने लिखा है कि in case of strong oxidizing agents like KMNO4 or K2Cr2O7, primary alcohols gets oxidized till carboxylic acid. The maximum oxidation for primary alcohol is carboxylic acid. And pyridinium chlorochromate, which is PCC, is a mild oxidizing agent which oxidizes primary alcohol only up till aldehyde. So just simple oxidation of alcohols. The only thing which you need to remember कि reagent कौन सा आप use करोगे, क्योंकि that is very important. Now the next preparation from alcohols is open your oxidation. Now open your oxidation का सिर्फ और सिर्फ जो याद रखने वाला factor है, that is its reagent, right? So its reagent is aluminium tertiary butoxide. So if you look at it, so this is the structure CH3 thrice CO thrice aluminium. So it is aluminium tertiary butoxide. So this oxidation is specifically used for secondary alcohol, right? Secondary alcohol को हम कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए ओपन और ऑक्सीडेशन यूज करते हैं. सिंपल है, इसका मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है. जस्ट यू नीड टू रिमेंबर द रिएजेंट हियर कि ओपन और ऑक्सीडेशन में कौन सा रिएजेंट यूज करा है. एंड एज वी ऑल नो कि 3 डिग्री अल्कोहल्स को हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ. इट जस्ट नॉट फॉर ओपन और सबके लिए वैलिड है कि 3 डिग्री अल्कोहल्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज फर्दर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ hydrogen on it. Now the next is heating in the presence of copper. अब अगर हमने अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में हीट किया and the temperature is 573 Kelvin, which means 300 डिग्री सेल्सियस, तो डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है हमारे अल्कोहल्स का. So H2 हमारी इवॉल्व हो जाएगी. So डिहाइड्रोजिनेशन, on dehydrogenation a primary alcohol, now this is again primary alcohol, it is giving you aldehyde, and if you dehydrogenate a secondary alcohol, तब आपको end product will be ketone. So copper in the presence of copper heating in the presence of copper at 300 degrees Celsius or 573 Kelvin will do dehydrogenation of my primary and secondary alcohol. Primary alcohol as usual will give you aldehyde and secondary alcohol will give the ketone. Now the next preparation पहली हमने cover कर ली from alcohols. Now we are moving on to from alkenes. So alkenes के case में the first reaction is very famous, which is ozonolysis. I'm sure कि सबने alkenes में पढ़ी है ये reaction, hydrocarbon में in fact. So ozonolysis का हमें पता है क्योंकि हम यहाँ पे aldehyde और ketone की बात कर रहे हैं. So if we have a terminal alkene, so in that case हमें reductive ozonolysis करनी पड़ेगी. If you do oxidative ozonolysis, then the end product will be carboxylic acid, and in this case we want the aldehyde to be formed. इसलिए हम यहाँ पे reductive ozonolysis करेंगे अगर हम एक terminal alkene की बात कर रहे हैं. So simple है कि reductive ozonolysis में you have to make sure कि zinc is present या Me2S is present. So in any case of reductive ozonolysis, we'll end up with aldehydes and ketones only. Carboxylic acid will not be the product. So reagent use is very simple. First हम O3 in the presence of THF डालेंगे ताकि एक monoozonide form हो जो rearrange करके ozonide form करेगा, and then finally we'll do the reduction, which is zinc in the presence of H2O. So that will cleave my C double bond C bond and will give me C double bond O bond. Right? I would suggest this, ये मैंने तुम्हें एक middle step बता दिया है, which is कि अगर हमने first O3 in the presence of THF, if I add, so O3 obviously यहाँ पे THF is the solvent, tetrahydrofuran, so that is the solvent here. ठीक है, तो ये है हमारे पास RCH double bond CH2, so O3 in the presence of THF, यहाँ पे हमारा ozonide form हो जाएगा, and then ozonide की हम cleavage कर देंगे using zinc in the presence of water, तो end product will be RCHO plus HCOH. Basically जहाँ पे भी C double bond C bond था, यहाँ से सीधा break करो, right, and we'll just add double bond oxygen here. अब यहाँ पे एक hydrogen था तो hydrogen. Similarly we have H2C double bond. So in both the cases we can get, यहाँ पे हमें aldehydes मिल रहे हैं. First is formaldehyde and the other is some like higher homologous of that. Now the next example is, अब यहाँ पे मैंने एक मतलब non-terminal लिया है. So non-terminal के केस में what we've done कि हमारे पास again वही same है
कि सम आर सी डबल बॉन्ड, अब देखो क्योंकि अगर हमें पता है कि हमें सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड को ब्रेक करना है, व्हेन वी ब्रेक दिस तो यहाँ पे आर सी तो एक कीटोन बन जाएगा. सो दिस लेफ्ट हैंड साइड वाला कार्बन विल गिव यू कीटोन एंड द राइट हैंड साइड वाले कार्बन पे हमारे पास एक हाइड्रोजन अटैच्ड है. दैट मीन्स यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी वन कीटोन एंड वन aldehyde. So in that case हमने बस cleavage करा है. So just cleave and you'll get the final product. So R C double bond CH3 plus C CH3 H and double bond O. This is the easiest way to do ozonolysis. Just cleave your CC double bond and add C double bond O there. That's it. And that is the case of reductive ozonolysis. If we have oxidative ozonolysis, अगर आपने यहाँ पे सिर्फ water लिया होता and no zinc, तब यहाँ पे हमारे पास जो aldehyde वाला product है that will be further oxidized to carboxylic acid. तब हमें यहाँ पे carboxylic acid मिल जाता and ketone cannot be further oxidized, so ketone तो as it is रहता. Right? So I hope this is fine. कि the first reaction of alkenes with to form aldehydes and ketones is ozonolysis, and in case of terminal then we have to do reductive ozonolysis, otherwise we'll end up with carboxylic acid. Now the next process is from alkenes only, that is oxo process. Ab oxo process ka bhi the main thing which you need to remember is the reagent. So the reagent here is CO, carbon monoxide in the presence of hydrogen, and this is the catalyst which is cobalt tetra carbonyl ka dimer, right? This is cobalt tetracarbonyl dimer as the catalyst. This is just a catalyst which will increase the rate of the reaction, and here it is a sort of a step up reaction. मतलब कि यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन ऐड हो जाएगा, जिस जो हमारे रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ कार्बन थे प्रोडक्ट में उससे एक ज्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस CO. So this CO will be adding on the reactant. So अब मैंने यहाँ पे इस केस में एक जनरल alkene लिया है R CH double bond CH2, and if you add CO in the presence of H2 in the presence of the same catalyst, you'll end up with, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि after this double bond हमने यहाँ पे CHO group add कर दिया, and obviously this double bond will convert it into single bond क्योंकि hydrogen add हो जाएगा, right? So this is the oxo process, and the product here is aldehyde. So aldehyde का formation होता है using oxo process. Now the next process is Wacker's process. अब ये थोड़े से important है क्योंकि question में आपको directly like सीधा नाम लिख देगा कि oxo process, Wacker's process, like which of these can be used for the preparation of aldehyde. कैसे भी question आ सकता है. So you should know at least the name reaction. Name reactions याद होना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें reagent या फिर कुछ भी नहीं बताया होता. We are just given the name of the reaction and you have to identify. तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि exactly क्या वो reaction थी, उसमें reactant क्या था, उसमें reagent क्या था और उसका product क्या था. Right. So the next is Wacker's process. Again, this is from alkenes. So alkenes के case में Wacker's process कभी reagent is PDCl2 plus water in the presence of CuCl2. Now CuCl2 is my catalyst and this is the reagent. So this is used for the preparation of aldehydes and ketones. अब reaction क्या है? It's nothing, बस हमने alcohol लिया. Alcohol के case में alcohol में हमने PDCl2 और H2 डाला and we have ketone. Just simple oxidation है, nothing else. So Wacker process, just because of the name it's important, otherwise इतना कुछ like ज़्यादा mechanism and all पे तो जाने की जरूरत नहीं है. You just need to know the name क्योंकि question अगर आएगा तो वो directly name से आ सकता है and in fact आता भी है. So just for that you need to remember oxo and Wacker's process. Right. So I think यहाँ पे right. So next we are moving on to alkynes. So alkynes में हमारे पास है from hydration of alkynes. Now the first is hydration. Hydration हमें पता है कि alkyne का हम कर सकते हैं using water in the presence of any mercuric salt. जैसे oxymercuration, demercuration में we use HgSO4. So that's fine. So in case of alkyne, तो alkyne के केस में अगर हमने hydration करी, so we know कि हम multiple bonding पे जब water add करते हैं तो एक पे OH चला जाता है और एक पे H चला जाता है. Now since this is a symmetrical alkyne, तो यहाँ पे Markovnikov, anti-Markovnikov जैसा कुछ आएगा नहीं, वो सिर्फ unsymmetrical के केस में generate होता है. So in case of CH, triple bond CH, any normal मैंने acetylene लिया है and if I add water to it, तो अब एक
पाई बॉन्ड तोड़ के हमने H और OH ऐड कर दिया, राइट. दिस इज द फर्स्ट स्टेप व्हिच इज एडिशन ऑफ वाटर. अब एडिशन ऑफ वाटर होने के बाद दिस इज द प्रोडक्ट. नाउ इफ यू लुक एट इट, सो डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH प्रेजेंट है, मतलब दिस इज अ इनोल. तो इन डबल बॉन्डेड कार्बन और उसी पे ही OH, तो ऑल ओल. सो इनोल. अब जब भी हमारे पास रिएक्शन में इनोल फॉर्म होगा देन इट हैज टू टॉटोमराइज. तो कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास. तो कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म में एज वी नो कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन शिफ्ट होके C डबल बॉन्ड हो जाएगा. सो दिस इज द कीटो फॉर्म. एंड most of the times keto form is much more stable than enol form. That's why the इसका जो एरो होता है वो more towards the keto form रहता है. On enol form is not much highly favorable. So that's why keto enol tautomerism होने के बाद the major product that we will get is the ketone only. So in this case we have aldehyde, but C double bond O form हो जाता है using C double bond C and OH. So enol से राइट. नेक्स्ट इज, अब मैंने इस केस में अगेन वी हैव, अब यहाँ पे ये एक अनसिमेट्रिकल एल्काइन हो गया. सो इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्काइन वी हैव अगेन क्वेश्चन आएगा कि किस पे H जाएगा और किस पे OH जाएगा. तो उसका आंसर इज वेरी सिंपल. विल जस्ट सिंपली फॉलो द मार्कोनिकोव्स रूल. सो मार्कोनिकोव का एडिशन हो जाएगा यहाँ पे. more stable carbocation will be formed on this middle ones 2 degree carbon. इसलिए जो OH group है, जो OH substituent है, that will add up on the central carbon and instead of the terminal carbon. So अब हमने क्या किया कि हमने simple water का addition कराया. The only thing in case of unsymmetrical alkyne is you have to choose the position also, क्योंकि अब दोनों positions अलग अलग हैं. ऊपर वाले में दोनों position same थी, so it didn't make a difference. आप किसी पे भी OH डाल दो, किसी पे भी H डाल दो, तो product is same. But in this case we have to identify कि OH कहाँ land up करेगा. So in that case it's simple Markovnikov addition. तो Markovnikov addition में it says in case of unsymmetrical alkene or alkyne, the positive part of the species that we are adding will go to that carbon which has more number of hydrogen. So in case of water it's nothing but H plus and OH negative. So positive part which is H plus will go to that carbon which has already more number of hydrogen atoms attached. So इसके पास एक hydrogen है, इसलिए H plus will go to this carbon. Now just we'll just simply add H and OH after identifying कि कहाँ पे OH land करेगा. अब then again this is a enol, double bonded carbon पे OH attached है, so this is enol. Then it will further tautomerize into keto. So we have the final product as acetone, right? So normal, अगर हमने normal acid catalyzed hydration करा है alkyne का, so we'll do first Markovnikov's addition and then we'll do keto-enol tautomerism to finally end up with aldehyde or ketone depending on the alkyne. Now the next reaction from alkynes is hydroboration oxidation. So hydroboration oxidation same सबने already I think hydrocarbon में करा हुआ है. So the first reagent is BH3 in the presence of THF. BH3 की जगह वो B2H6 भी लिख सकता है. Both are same. So the first reagent का जो first part है that is BH3 in the presence of THF. The second is oxidation which is done by using hydrogen peroxide in basic medium. So hydroboration oxidation. अब the most important thing to remember here कि यहाँ पे हमारे पास anti Markovnikov addition हो जाता है. ऊपर वाले केस में हमने unsymmetrical पे Markovnikov's addition कराया था, but in case of hydroboration oxidation on unsymmetrical alkyne, then we'll have anti-Markovnikov's addition of HOH. Now first example is simple. First example में मैंने symmetrical लिया है. So when you do, तो एक यहाँ पे हमारे पास ट्राई अल्काइल बोरोन कंपाउंड बनता है. So this is ट्राई अल्काइल बोरोन. पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, then दूसरा हाइड्रोजन and then the third hydrogen. So we'll have ट्राई अल्काइल बोरोन compound. This is the first step. यहाँ तक जो अभी तक हम आए हैं, this is hydroboration. This is not oxidation. The second step, जब हमने H2O2 in the presence of OH negative डाला है, then it will further oxidize. And oxidation के बाद जिस पे भी boron attached है, that will get OH and will get our aldehyde. जैसे in this case we have aldehyde as the product. इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि terminal alkyne will produce aldehyde. So terminal alkyne के केस में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास already terminal होने की वजह से उसके पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच्ड है. सिंपली
वो हमारे पास as it is रहेगा, and we'll have aldehyde as the major product. So that's why in case of terminal alkyne we'll get aldehyde if you do hydroboration oxidation. अब boron क्वेश्चन अब आएगा कि अगर हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया तो अब बोरोन किस पोजीशन पे जाएगा. सो फॉर दैट वी हैव आर सी. अब मैंने एक नॉन टर्मिनल एल्काइन लिया है. सो इन दिस केस इट विल हैव एन, जैसे यहाँ दिस इज आल्सो असिमेट्रिकल क्योंकि हमें पता नहीं है कि आर और आर डैश क्या है, तो सम सॉर्ट ऑफ सिमेट्री है. अगर हमने एक H ले लिया होता और एक R लिया होता, तो इन दैट केस हम बोल सकते थे कि हाइड्रोजन अब उस कार्बन पे जाने वाला है जिसपे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो we would have gotten anti-Markovnikov addition. So product वहां पे भी aldehyde ही बनना था क्योंकि OH हमारा टर्मिनल वाले कार्बन पे ऐड होता, राइट. तो अब हमने नॉन टर्मिनल एल्काइन लिया, सो नॉन टर्मिनल एल्काइन के केस में अगेन एक को H दे दिया, दूसरे को OH दे दिया, एंड देन वी हैव आवर enol, and enol is further tautomerizing into keto form. So this is enol and this will tautomerize into ketone. So this is keto enol tautomerism. So ketonol tautomerism के बाद we have the ketone. तो इसीलिए non-terminal alkyne अगर आप use करोगे in case of hydroboration oxidation, so non-terminal alkyne produce ketones. I hope that's fine. Next is preparation from geminal dihalide. Geminal का मतलब होता है कि same carbon से attached हो. So gem dihalides if you have, which is एक ही carbon पे दो halides लगे हुए. So in this case I've taken chlorine का derivative, chlorine compounds. So this is R, C, R dash, and central वाले carbon पे we have two chlorine groups attached. So first is hydrolysis. So hydrolysis का मतलब है कि हम Cl को OH से replace कर देंगे, which is nothing but a nucleophilic substitution. OH negative will replace Cl negative from the geminal dihalide. So first is simple nucleophilic substitution. तो nucleophilic substitution होने के बाद we have gem diol. तो अब gem diol we know that they are not stable. So because of less stability of gem diols, they further dehydrate themselves. Dehydration होने के बाद एक OH और ये एक H, ठीक है. This will be removed from the gem diol and we have ketone here as the final product. So this is also a preparation of ketone. First is nucleophilic substitution of chlorine with OH negative and then the formation of gem diol. Gem diol क्योंकि stable नहीं होते, so they further dehydrate and we have ketone as the final product. I hope that's fine. ये जेम अल्कोहल फिनोल ईथर में सबने पढ़ा ही होगा अल्कोहल्स में कि जेम डायोल्स आर नॉट स्टेबल. द नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम pyrolysis of pyrolysis. First thing, pyrolysis means strong heating, right? Pyrolysis of calcium salts of carboxylic acid. So carboxylic acids का अगर हमने calcium salt form किया, which is कोई भी हमने लिया RCOH, तो उसका calcium salt बनाएंगे तो it will be RCOO twice Ca. So this is the calcium salt of any carboxylic acid. तो इसको अगर हमने हीट किया तो हीट करने से क्या होने वाला है कि दो मॉलिक्यूल्स इसके आपस में, सॉरी दो मॉलिक्यूल्स तो नहीं, बट वी हैव RCOO. दिस इज समथिंग लाइक दिस इज द कंपाउंड, राइट. दिस इज पे नेगेटिव नेगेटिव और इस पे 2 पॉजिटिव. तो एक ही मॉलिक्यूल है तो एक कंडेंसेशन हो जाएगा यहाँ पे कि एक हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट CaO and CO2 will liberate. So effervescence is again identification for this. So हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा RCOR. तो we'll have ketone as the product. So pyrolysis means strong heating of any calcium salt of carboxylic acid. When you do that, तो हमारे पास CO2 और CO side हो जाएंगे and we have ketone as the product. So एक decomposition reaction sort of है. Now if the question is कि if you take two types of salts, like अभी तक हमने सिर्फ एक salt लिया था ना, तो उसी के आपस में molecules वो हो रहे थे, compress हो रहे थे.
अब द क्वेश्चन इज कि अगर हमने दो टाइप के ले लिए, दो टाइप के कैल्शियम सॉल्ट चाहिए अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेट का सॉल्ट लिया है एंड दूसरा इज एसीटेट सॉल्ट लिया है. सो इन दैट केस हमारे पास अब तीन पॉसिबिलिटी है. फर्स्ट इज कि फॉर्मेट और फॉर्मेट आपस में कर लें, सेकंड इज कि एसीटेट और एसीटेट, एंड द थर्ड इज कि एक एसीटेट और एक formate. So in this case the major product always is the cross product. Okay, self product से ज़्यादा probability cross product की होती है, इसलिए in this case this is formate का होने के बाद, so this is a self product, this is the here is cross product. ठीक है, और इसीलिए ये जो cross product होगा that is the major product. This is again self, दो हमारे पास acetate के salts का रिएक्शन हुआ है. सो व्हेनेवर यू डू मिक्स्ड, राइट, तो मिक्स्ड अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सॉल्ट लिए हैं, देन क्रॉस प्रोडक्ट इज द मेजर वन. सो दैट्स इंपॉर्टेंट एंड you should remember this. Keen cross product is the major product. Just because of higher probability, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. नेक्स्ट इज रोजनमंड रिडक्शन. अगेन ये भी एक नेम रिएक्शन हो गई, तो ये इसका भी बस आपको याद रखना है. सो रोजनमंड रिडक्शन इज द प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड क्लोराइड. सो एसिड क्लोराइड अगर आपने लिया तो एसिड क्लोराइड इज RC++O, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, तो RCOCl की अगर हमने रिएक्शन कराई है H2, सो हाइड्रोजन का एडिशन है, तो इसीलिए रिडक्शन. अब द catalyst here is palladium in the presence of barium sulfate. So this is palladium here is a catalyst, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए एक surface adsorption के लिए एक surface चाहिए होता है, that is what palladium is here for. So Rosenmund reduction का reagent is important. So reagent is hydrogen H2 in palladium BaSO4. So if you do this, if you add this reagent on an acid chloride, so acid chloride will reduce into aldehyde. So अब हमने preparation करा है acid chloride से aldehyde का. Now important thing is कि आप इस reagent के अलावा आप dibyl H भी use कर सकते हो. Dibyl H is nothing but diisobutyl aluminium hydride. ठीक है, तो this is a again hydride donor होता है. Instead of this you can use dibyl H as well. So dibyl H also is used for the second reaction जो हमने नीचे लिखी है, which is Stephen's reaction. अब Stephen's reaction की spelling actually दोनों चलती हैं, so this is also fine. So Stephen's reaction is also something like again name reaction, तो थोड़ा सा आपको reagent भी याद रखना पड़ेगा और reactant भी याद रखना पड़ेगा. So this is reaction of nitriles या फिर cyanides की reaction है. So alkyl cyanide की अगर आपने reaction कराई है SnCl2 in the presence of HCl and hydrolysis, and the end product will be aldehyde. So this is again ऊपर वाले जो हमने करे थे they are ketone की preparation. Now Rosenmund and Stephen's reaction, they are the preparation of aldehyde. Rosenmund you have to remember it is from acid chlorides, whereas Stephen's reaction is from alkyl cyanides. Again for this reaction instead of SnCl2 and HCl we can use dibyl H, diisobutyl aluminium hydride. Again hydride donor से reaction हमारी aldehyde पे stop हो जाती है. It does not reduce up till alcohol. So एक sort of मतलब mild reducing agent कह सकते हैं इनको, कि reaction ने aldehyde पे ही stop कर दिया. Now the next reaction is cleavage using HiO4. So HiO4 के केस में अगर हम diols के साथ, diol which are geminal vicinal diol, this is vicinal diol. तो अगर हमने cleavage करी vicinal diol की using HiO4. Now HiO4 is an important reagent. तो इसके cleavage कर देता है ये. अब इसका product बनाना again बहुत ही simple है. All you have to do is एक compound में कितने भी H और OH हमारे vicinal हो सकते हैं. So in that case ये sugars में बहुत ज़्यादा frequently use होता है, क्योंकि they have like glucose की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास 4 एकदम से HOH present होते हैं, right? So this is OH, H, OH, H. This is CHO and this is
CH2OH. So if you look at it, तो ये सब जगह हमारे पास OH विसिनल प्रेजेंट है. सो शुगर्स में ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्लीवेज यूजिंग HiO4. अब द बेसिक सिंपल फंडा इज कि जब भी आप HiO4 के साथ क्लीवेज करो किसी भी डायोल की, सो जस्ट ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज कि अगर आप जितने एक कार्बन के CC बॉन्ड हमें ब्रेक करने हैं और CO बॉन्ड फॉर्म करने हैं, सो एज मच CC बॉन्ड्स यू ब्रेक उतने आप CO बॉन्ड्स फॉर्म कर दो. जैसे इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये CC एक बॉन्ड है, अगर मैंने इसका ब्रेक किया, क्योंकि ये दोनों का ब्रेक होगा ना, तो हमें ऑटोमेटिकली दोनों का एक CO बॉन्ड फॉर्म करना है. सो दैट्स द सिंपल फंडा. तो HiO4 के साथ आप ऑक्सीडेशन करो, सॉरी क्लीवेज करो, सो हमारा विसिनल डायोल विल कन्वर्ट, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाता है, CC बॉन्ड ब्रेक हो जाता है एंड वी हैव CO बॉन्ड्स फॉर्म. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस केस में ग्लूकोज के केस में बात करूं तो यहाँ पे ये सब जगह से क्लीव हो जाएगा. इनफैक्ट OH और डबल बॉन्ड O भी अगर हमारे पास विसिनल पोजिशंस पे है तो वो भी हमारे फर्दर क्लीव हो जाते हैं. तो CC बॉन्ड ब्रेक करना है. अब अगर सपोज करो इसके पास भी OH है और इसके पास लेट्स से डबल बॉन्ड O है, राइट. तो आपको अगर आपने इसकी रिएक्शन कराई यूजिंग, मतलब अगेन रिएक्शन कराई HiO4 के साथ, सो HiO4 के साथ अगर आप क्लीवेज कराओगे तो अब ये CC बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे. सो ये CC बॉन्ड ब्रेक करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें CO बॉन्ड फॉर्म करना है. एंड सिंस यहाँ पे ऑलरेडी दो बॉन्ड्स होंगे, लेट्स से एक H होगा और एक समथिंग R ग्रुप होगा, हमें नहीं पता क्या, राइट. तो इन और ऊपर वाले पे लेट्स से कि यहाँ पास हाइड्रोजन भी है और इधर कुछ भी प्रेजेंट है, राइट. तो ऐसा जब भी आप ऐसे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करोगे HiO4 के साथ, तो CC बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा एंड CO बॉन्ड फॉर्म करना है. अब ऊपर वाले के केस में ऑलरेडी सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ऊपर वाले का हमारे पास एल्डिहाइड फॉर्म कर जाएगा. इफ ये H की जगह कुछ और ग्रुप होता तो कीटोन फॉर्म हो जाता. अगर हम नीचे वाले ग्रुप की बात करें तो इसके पास ऑलरेडी डबली बॉन्डेड हमारे पास का ऑक्सीजन अवेलेबल है. सो इन दिस केस जब ये इसका CC बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसको CO बॉन्ड फॉर्म करना है. तो इसका मतलब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ऑलरेडी है, तो ये जो H है दैट विल कन्वर्ट इट इनटू OH. सो ऑक्सीडेशन यहाँ आ जाएगा इंस्टेड ऑफ, सो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है. सो HiO4 के साथ आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि किस टाइप का हमारा रिएजेंट है. सो इफ इट इज सिंपल डायोल, विसिनल डायोल है अगर हमारे पास, तो इन दैट केस वील हैव ईदर एल्डिहाइड और कीटोन एज द फाइनल प्रोडक्ट. अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टेकन दिस, तो आई हैव CH3CHOH, दिस इज CH3. अब यहाँ पे भी ऑब्वियसली OH आ जाएगा. सो दिस इज अ विसिनल डायोल. अब विसिनल डायोल हमें पता है कि हमें क्या करना है, CC बॉन्ड ब्रेक करना है. CC बॉन्ड ब्रेक करने के बाद विल जस्ट हैव C डबल बॉन्ड O. तो यहाँ पे क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है तो यहीं पे ही फॉर्म हो जाएंगे बॉन्ड्स. सो वी हैव फर्स्ट प्रोडक्ट हियर इज aldehyde, precisely acetaldehyde, and the second one is ketone. अब कीटोन का थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट होता है. सो दिस विल बी इथाइल मिथाइल कीटोन, ऐसा उसका कॉमन नेम हो जाएगा. एंड इफ नॉट तो आप IUPAC तो सबको आई थिंक आता ही होगा. कॉमन नेम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इसका. सो द रिएक्शन विद HiO4 इज इम्पोर्टेंट. ऑल यू नीड टू नो कि आपको CC बॉन्ड ब्रेक करके CO बॉन्ड फॉर्म करना है. अब कुछ भी आप ले सकते हैं यहाँ पे. लेट्स से आई हैव OH, आई हैव OH. अब लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है एंड हियर आई हैव R, some R dash, राइट. तो अगर मैंने इसकी क्लीवेज कराई यूजिंग HiO4, तो अगेन सिंपल फंडा, CC बॉन्ड ब्रेक करो, CC बॉन्ड ब्रेक किया और CO. अब इसके पास सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो ये डबली बॉन्डेड हो जाएगा. अगेन सेम इज द केस फॉर दिस. द प्रोडक्ट विल बी R, C डबल बॉन्ड O, R dash. नाउ दिस इज a ketone plus we have H, C, H double bond. Oh, so this is aldehyde. अगर आपको दोनों एल्डिहाइड फॉर्म करने हैं तो आप दोनों जगह एक एक हाइड्रोजन रख लो, तब एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा. अगर आपको दोनों कीटोन फॉर्म करने हैं तो आप दोनों, मतलब हर कार्बन, दोनों कार्बन्स के दोनों सब्स्टिट्यूएंट में अल्काइल चेन ऐड कर दो. सो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट विल बी कीटोन. और अगर हमें एक ही प्रोडक्ट लेना है तो यू जस्ट टेक अ सिमेट्रिकल कंपाउंड. जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव CH3C, CH3OH, COH,
CH3 and CH3. सो अगर मैंने इसकी रिएक्शन कराई है HiO4 के साथ, सो सिंपल है, CC बॉन्ड ब्रेक करके CO बॉन्ड फॉर्म करना है. सो दिस आई विल ब्रेक, एंड क्योंकि सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसको हम डबली बॉन्डेड कर देंगे. दोनों तरफ क्योंकि सिमेट्रिक है कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में, सो द ओनली प्रोडक्ट हियर विल बी एसीटोन. सो एसीटोन हियर इज द ओनली प्रोडक्ट. अगर हमें सिंपल सिर्फ एक मतलब एक ही एल्डिहाइड फॉर्म करना है तो वो भी हम फॉर्म कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव सो इफ आई हैव दिस कंपाउंड, तो इसके बाद इसके साथ मैंने रिएक्शन करवाई HiO4 के साथ. सो HiO4 अगेन CC बॉन्ड ब्रेक करो और CO बॉन्ड फॉर्म करो, दैट्स इट. सो CC बॉन्ड हमने यहाँ से ब्रेक किया एंड CO बॉन्ड, अब क्योंकि सिंगली बॉन्डेड है तो हम डबली बॉन्डेड कर देंगे उसको. सो दिस विल गिव मी H C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. सो दोनों क्योंकि सिमेट्री है तो एक ही हमारे पास फॉर्म होगा यहाँ पे एल्डिहाइड, एंड इट विल बी प्रोपेनल. सो प्रिपरेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं, न्यूमरस हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं, हम कैसे भी फॉर्मेशन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. तो ये रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है. शुगर्स भी सबसे ज्यादा इसके क्वेश्चंस हैं. जैसे अब मैंने आपको ये बताया यहाँ पे, तो ये सारे के सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे क्योंकि सब विसिनल डायोल्स हो जाएंगे. एंड इन दिस केस वी हैव एक एल्डिहाइड और डबल बॉन्ड. CC बॉन्ड ब्रेक करके CO बॉन्ड फॉर्म करने हैं, दैट्स इट. नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू एरोमेटिक. नाउ एरोमेटिक के केस में अगर हमें बात करनी है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो बस एक ये है कि अगर सिंपल फर्स्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड देखें तो इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास बेंजाल्डिहाइड. दिस इज बेंजाल्डिहाइड, and the most frequently used ketone is acetophenol. So acetophenol is something like C double bond O, aceto. So this is aceto and this is phenol. So this is acetophenol. So these are all simple. मैंने आपको जो सबसे frequently used है मैंने वही बताए हैं. बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शंस काफी पड़ी होंगी. अभी फर्दर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज में, देन आल्सो वील स्टडी सम ऑफ स्पेशल रिएक्शंस ऑफ बेंजाल्डिहाइड. नाउ अगेन एक और है which is benzophenone. Benzophenone is again, this is a benzo, तो this is called benzo. ठीक है, तो बेंजीन रिंग के साथ वाला अगर आपका C double bond O present है तो that is called benzo. So अगर phenone next is also phenone, so this will be, so this is a benzophenone. So these are the most frequently used. अब first preparation is using Friedel-Crafts acylation. अब Friedel-Crafts acylation is a electrophilic aromatic substitution. Electrophilic aromatic substitution कि aromatic ring पे हम कोई electrophile substitute कर रहे हैं हाइड्रोजन की जगह. So electrophilic aromatic substitution का example है ये. So हमें reagent इसका already पता है. So reagent for acylation क्योंकि हमें ketone बनाना है. So for that we'll use RCOCl, which is acid chloride, in the presence of anhydrous AlClC. anhydrous का logic सबको पता है कि why we need anhydrous, क्योंकि यहाँ पे हमें एक Lewis, इसको as Lewis acid काम कराना है, तो इसलिए anhydrous लेना जरूरी है. अगर आपने hydrated ले लिया तो वो Lewis acid नहीं रहेगा, right? अब इस केस में आप instead of acid chloride आप anhydride भी ले सकते हो. So anhydride can also be used instead of acid chloride. That is also, that will also give you the same product. Anhydride in again anhydrous AlCl3. First reaction same है दोनों के लिए. So अब simple reaction है, आपने बेंजीन लिया, बेंजीन के ऊपर हमने कोई एक anonymous RCOCl, which is acid chloride, हमने add किया. So acid chloride in the presence of anhydrous AlCl3. So अब ये यहाँ से ये RC double bond O जो ग्रुप है
एसिड क्लोराइड का, दैट विल ऐड ऑन द बेंजीन रिंग. सो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा कीटोन. सो दिस इज अ एरोमेटिक कीटोन हमने फॉर्म कर लिया. अब इसका मैकेनिज्म आई एम श्योर कि सबको पता होगा, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इज सिंपल, लुईस एसिड बेस्ड रिएक्शन है. सो दिस इज माय लुईस एसिड. ये रिएक्ट कर लेगा क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये Cl के साथ यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा एंड विल हैव RCO पॉजिटिव. सो ये हमारे पास बन गया हमारा केटायन. तो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल. सो यहाँ पे ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल. सो अब इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करेंगे हम ऑन आर एरोमेटिक रिंग. तो इसका भी एक सिंपल सा मैकेनिज्म है. दिस इज द बेंजीन रिंग. अब हमारे पास ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल. तो अब हर कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये एक पाई बॉन्ड ने अटैक कर दिया केटायन पे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी समथिंग लाइक, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा एंड हियर वी हैव C डबल बॉन्ड OR जो इलेक्ट्रोफाइल है, एंड दिस इज हाइड्रोजन. फिर ये घूम के आके ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा एंड विल हैव सिंपल C डबल बॉन्ड OR. सो हमारे पास एक एरोमेटिक कीटोन फॉर्म हो जाएगा. सो अब रिएक्शन काफी सिंपल है, मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए you should know the mechanism. सिंपल रिएक्शन है. नेक्स्ट इज ईटार्ड रिएक्शन. अब जैसे भी मतलब रिक्वायरमेंट होगी हम अकॉर्डिंगली फॉर्म कर लेंगे. नाउ ईटार्ड रिएक्शन इज आल्सो इम्पोर्टेंट. नेम रिएक्शन है, रिएजेंट्स आपको याद रखने हैं. तो रिएजेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. सो रिएजेंट में आप या तो CrO2Cl2 ले लो, क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, या फिर CrO3 in the presence of acetic anhydride. Both will do the same job. So अब फर्स्ट स्टेप है ये, ठीक है. एक क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे, एंड द लास्ट इज हाइड्रोलिसिस. एसिडिक हाइड्रोलिसिस इज द सेकेंड स्टेप. सो दिस रिएक्शन इज, अगर आपने टॉलिन लिया है, टॉलिन इज बेंजीन के ऊपर CH3. सो टॉलिन इन द विद दिस CrO2Cl2 in CS2, and the second is hydrolysis. So the product here is benzaldehyde. तो reagent याद रखना है, and ये याद रखना है कि reactant था हमारा toluene, and this is a preparation for benzaldehyde. Depending on कि अगर आपको कुछ derivative चाहिए तो हम accordingly हमारा reactant भी change कर लेंगे, reaction हो जाएगी. इसका भी इटार्ड का हमें reagent is important. Chromyl chloride gas CrO2Cl2 in the CS2. Second reaction is, this is again for benzaldehyde ka preparation, that is Gattermann-Koch synthesis. So Gattermann-Koch synthesis is benzene in the presence of CO, carbon monoxide, and HCl in the presence of AlCl3. So benzene in the presence of CO plus HCl will give you benzaldehyde. Again reaction काफी simple है. यहाँ पे again इसका ये हमारे पास reaction हो जाएगा, and the CO will add on the benzene ring. Now this is the last reaction, which is Fry's rearrangement. This is very very important. इसका mechanism भी क्योंकि बहुत important है, इसलिए usually जो questions आते हैं इसमें वो ऐसे आएंगे कि आपको labeling के साथ वो देगा, क्योंकि जैसे I'll give you the example. तो पहले देखते हैं कि है क्या Fry's rearrangement. तो Fry's rearrangement is a rearrangement of phenolic esters. ठीक है, esters का हमें rearrangement करना है in the presence of AlCl3 and heat. So AlCl3 and heat is the reagent here. कोई भी वैसे लुईस एसिड काम कर सकता है. So लुईस एसिड and heat. So this is the simple requirement for Fry's rearrangement. अब reaction क्या है कि हमारे पास एक ester है. This is ester RCOOR
दिस इज एन एस्टर, राइट? तो अब अगर हमने इसकी रिएक्शन कराई है तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दिस ओ सी बॉन्ड फिनोल के साथ, मतलब जो बेंजीन है उसके साथ ऑक्सीजन रहेगा, क्योंकि दिस हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, राइट? so this is partial double bond character, दोनों साइड है इनफैक्ट वो तो, क्योंकि रेजोनेंस तो यहाँ भी होगा ना, ठीक है? तो इन दिस केस ऑफ एस्टर अब प्राइस रीअरेंजमेंट है क्या कि हमें ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना है और इसको शिफ्ट कर देना है टू द ऑर्थो या पैरा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. अब दिस इज अगेन टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर के साथ हमारे प्रोडक्ट चेंज हो सकते हैं. सो इफ द टेम्परेचर इज हाई, लाइक इफ इट इज 160 डिग्री सेल्सियस, तब हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा. एंड इन केस ऑफ लोअर temperature range which is approximately like if we have 60-70 degree celsius, तब हमारे पास para product बन जाएगा. again that is thermodynamic and kinetic stability, nothing different. so अब हमने क्या लिया है कि हमने एक एस्टर लिया. so एस्टर के केस में अगर आपने एनहाइड्रस AlCl3 in at high like 160 डिग्री सेल्सियस अगर आपने लिया है, तो ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाएगा. क्या होने वाला है कि ये जो CaCH3 है ये ऑर्थो पोजिशन पे अटैच हो जाएगा एंड दिस विल बी अ aromatic ketone. so this is a ketone. अब ऑर्थो एसाइल फिनोल, अब क्योंकि दिस इज फिनोल, फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे, OH के ऑर्थो पोजीशन पे हमारे पास एसाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए ऑर्थो एसाइल फिनोल. सो दिस इज at 160 डिग्री सेल्सियस. दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर आपने टेम्परेचर लिया है 60 डिग्री सेल्सियस, तो 60 डिग्री सेल्सियस पे द पैरा एसाइल फिनोल विल बी फॉर्म्ड. तो अब यही सेम स्टेप होगा कि ये O C बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड दिस विल गो टू द फोर्थ पोजिशन and we'll have again para acyl phenol. Now the question is कि why only ortho and para? तो उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे जब फिनोल का अगर हम देखें तो रिंग के साथ जो उसका रेजोनेंस होगा, मीजोमेरिक इफेक्ट होगा, तो दैट विल जनरेट नेगेटिव चार्ज, राइट? ये जब इधर शिफ्ट होगा प्लस एम इफेक्ट होगा, तो प्लस एम की वजह से ये नेगेटिव चार्ज विल बी डेवलप्ड ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट होगा या तो वो ऑर्थो पे शिफ्ट होगा या फिर वो पैरा पे शिफ्ट हो जाएगा. तो अब मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट स्टेप इज एसिड बेस. अगेन ये O का लोन पेयर will be shared with AlCl3 का वेकेंट ऑर्बिटल. सो पहला हमारे पास हुई लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. सो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया. अब हमारा यहाँ पे बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर लिए उसने. सो दिस बॉन्ड नाउ ब्रेक्स. इफ दिस बॉन्ड नाउ ब्रेक्स, तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है, जो इंटरमीडिएट बना है, दैट इज CH3CO. दिस इज अगेन क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, राइट? अब यहाँ पे क्या है कि OAlCl3. नाउ वी नो दिस इज मेटल नॉन मेटल, तो इसमें यहाँ पे चार्ज भी रहेगा ही, O नेगेटिव एल्यूमिनियम पॉजिटिव. तो अब अगर हम ये इलेक्ट्रोफाइल देखें तो हमें पता है कि दिस इज ऑल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज, क्योंकि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा इसका एंड विल हैव C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, राइट? तो इसका यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बना दिए. दूसरा हमने द अदर रिएजेंट ऑल्सो उसका हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करे हैं, सेम है. मीजोमेरिक प्लस एम इफेक्ट है हमारे पास. प्लस एम के केस में हमें पता है कि लोन पेयर शेयर हो जाता है हमारा फिनाइल रिंग के साथ, तो जिसकी वजह से इफ यू कैन सी, तो दिस इज माय फर्स्ट पोजीशन, तो पहला नेगेटिव चार्ज आ रहा है हमारा, दिस इज C1. तो नेगेटिव चार्ज कहाँ का आ रहा है, 2 पे एंड 4 पे. अब नीचे अगर हम देखें तो अगेन इट इज एट 2 ओनली ना. आप इस तरह से चलोगे तो ये 2 आ जाएगा, उधर से चलोगे तो. सो ऑर्थो एंड पैरा पे ही नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है. सो अगेन मतलब मेन स्टेप जो होने वाला है दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. नेगेटिव चार्ज आपका अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफाइल पे, दैट्स इट. सो इंटरमीडिएट देखते हैं कैसे होगा. ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आई थिंक यू आर फाइन विद, इसमें कुछ नया नहीं है, ये ऑलरेडी काफी पहले से आते हैं बनाने. नाउ दिस इज रिएक्शन मेन. नाउ अगेन ये OCl आयनिक बॉन्ड है, इधर
शिफ्ट हुआ और पाई बॉन्ड ने बेंजीन के विल अटैक, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन सिंपल, एंड वी हैव C डबल बॉन्ड O. अब यहाँ पे AlCl3 भी प्रेजेंट होगा ना, दैट विल बी पॉजिटिव नेगेटिव. फिर फाइनली ये कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म होने के बाद दिस इज अगेन कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म. तो कीटोइनॉल होने के बाद विल हैव ऑर्थो एसाइल फिनोल, ऑर्थो पे शिफ्ट हो गया. द सेकंड इज कि अगर आपने लाइक पैरा पे अगर लो टेम्परेचर पे, दिस इज एट 160 डिग्री सेल्सियस, दिस इज एट 60 degree Celsius. So depending on the temperature, thermodynamic and kinetic stability will have ortho and para. सेम केस है जैसे हमने यहाँ पे पहले वही डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड का अटैक हमने मतलब सेकंड वाले से ही करा दिया था, सेकंड पोजीशन से ही अटैक हो गया था. अब हमने एक पाई बॉन्ड पहले डीलोकलाइज कराया और उसके बाद सेकंड पाई बॉन्ड ने अटैक किया है. सो पैरा पे जब नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा मेसोमेरिक से, तब अटैक हुआ है at the electrophile. So in that case we have para product. अब again ये भी एक इनॉल फॉर्म सॉरी कीटो फॉर्म हो जाएगा. इस केस में हमारी इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, राइट? इफ यू कैन सी दिस इज द कीटो फॉर्म, दिस इज इनॉल. अब इसका रीजन क्या है कि एरोमेटिसिटी आ रहा है. अगर कीटो फॉर्म देखें तो कीटो फॉर्म इज नॉट एरोमेटिक हियर, तो इसीलिए इस केस में हमारा जो कीटो फॉर्म है वो लेस स्टेबल हो जाएगा. सो इन दिस केस कीटो फॉर्म, यूजुअली हमारी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है. In this case, keto form is less stable than enol. So keto form हमारी कम stable है as compared to enol because of aromaticity. So that's why हमारा यहाँ पे enol की तरफ ज्यादा shift हो रखी है reaction. Equilibrium will be more shifted towards enol. So I hope that's fine. Now this is one of the cases जहाँ पे enol हमारा ज्यादा stable हो जाता है. Now again हमने इसका एग्जाम्पल लिया है. So example is very simple. एग्जाम्पल में अगर हमने पहला, अगर मैंने सपोज करो कि मैंने वही सेम कंपाउंड लेके बस क्या करा कि ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई करा दिया. सो इफ ऑर्थो पोजीशन इज ऑक्यूपाइड देन द प्रोबेबिलिटी इज मेजर फॉर पैरा. तो इसका मतलब जो हमारा COCH3 जो हमारा कीटोन एसाइल ग्रुप शिफ्ट होगा दैट विल गो टू द पैरा पोजीशन. सो इन दिस केस दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. मतलब वो दूसरे ऑर्थो पे भी जा सकता था ना, बट प्रोबेबिलिटी अब पैरा पे जाने की ज्यादा है. सो मेजर प्रोडक्ट इज दिस. अगेन उस पे जा सकता था बट वो स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाता. सो दैट्स व्हाई विल हैव पैरा एज द मेजर प्रोडक्ट. नाउ द सेकंड केस इज आल्सो सिमिलर लाइक दिस. अब हमने क्या करा, इंस्टेड ऑफ ऑर्थो हमने पैरा पोजीशन को ऑक्यूपाई कर दिया. सो इफ पैरा इज ऑक्यूपाइड देन ऑटोमेटिकली इट विल गो टू ऑर्थो. अब ऑर्थो में किसी पे भी डाल दो इट्स द सेम थिंग. So this, in this case, this is the major and the only product in fact. Now अगर मैं बात करूं कि इस पे questions कैसे आते हैं, तो question is labeling करके वो आपको दे सकता है. जैसे for example question आ सकता है this is OCOPH, ठीक है, this is my reactant. तो इस पे आपने कराया है AlCl3 and heat. अब instead of this simple reaction हमें पता है क्या होना है, बट उसने क्या किया, उसने आपको यहाँ पे मार्क कर दिया. So this is your 18 isotope of oxygen. So in this case हमें अब वो देगा कि ऑप्शन बताओ क्या होगा. So that will be first होगा सेकंड हो जाएगा सी हो जाएगा कि दोनों ही हो जाएंगे.
and D will be ठीक है. दिस इज द रैंडम क्वेश्चन. सो अगर वो आपको लेबलिंग करके देगा तो यू हैव टू नो कि यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होगा दैट विल बी दिस. तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो OH है लेबल्ड वाला ऑक्सीजन है दैट विल गो इनटू फिनोल. तो इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी बी. सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है. फ्राइज रीअरेंजमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ अलग टाइप का हो रहा है. सो इफ आई रिवाइज दिस तो इट्स वेरी सिंपल. फर्स्ट हमने क्या किया है कि एक एसिड बेस रिएक्शन कराई है जिससे हमारा OC बॉन्ड ब्रेक हो गया है. OCO बॉन्ड is broken in the first step. Second is again very simple electrophilic substitution है. उसके बाद कुछ नहीं है. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के केस में all you need to know कि जो हमारे पास बेंजीन के ऊपर OAlCl3 अटैच्ड है दैट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ऑर्थो और पैरा पे जनरेट होगा. दैट्स व्हाई द इनकमिंग मतलब जो ये CH3CO वाला electrophile है that will either go to the ortho position or it will go to para position. So if you have high temperature so it will major form जो product होगा that will be ortho 1, and if temperature is approximately 60-70 then para will be the major product. So that is very simple. अब एक और important था इसमें कि जो इसमें हमारे पास कीटो फॉर्म थी वो less stable थी as compared to enol. The reason was कि enol फॉर्म में शिफ्ट होने के बाद एरोमेटिसिटी आ रही थी कंपाउंड में. कीटो में एरोमेटिसिटी नहीं था. That's why कीटो से enol वाला conversion was more favorable. Now these are the examples. Simple. I hope it's fine. So I'll just end it here. Next we'll do properties. So thank you. I hope everything is clear to you. Thank you.